لاہور ہائی کورٹ نے ضلعی عدالتوں کے 38 ججز کے تبادلے کر دیے۔ 20 ایڈیشنل سیشن جج، 6 سینئر سول ججز اور 12 سول ججز کا تبادلہ کیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری، تبدیل ہونے والے ججز کو 16 اکتوبر تک نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال کا خوشاب سے فیصل آباد تبادلہ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انوار اللہ کا کے روڈ لالیسن سے فیصل آباد تبادلہ کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہدایت اللہ شاہ کا جامپور سے گجرانوالہ تبادلہ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انجم ممتاز کا راجنپور سے ساہیوال تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد نعیم کا راجنپور سے ساہیوال تبادلہ کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اشرف کا ساہیوال سے راجنپور تبادلہ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد معین کا ساہیوال سے راجنپور تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گل عباس کا ڈی جی خان سے ساہیوال تبادلہ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سید جہانگیر علی کا ساہیوال سے ڈی جی خان تبادلہ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خلیل احمد کا بھکر سے اوکاڑا تبادلہ کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد ریاض کا بھکر سے اوکاڑا تبادلہ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اشفاق کا صادق آباد سے ملتان تبادلہ کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد الیاس کا پپلا سے ملتان تبادلہ۔ سینئر سول جج شہزاد احسان بٹ کا خوشاب سے فیصل آباد تبادلہ۔ سینئر سول جج محمد امین شہزاد کا فیصل آباد سے خوشاب تبادلہ۔ سینئر سول جج محمد اسماعیل کا بھکر سے ملتان تبادلہ کر دیا گیا۔ سینئر سول جج محمد احمد کا ملتان سے بھکر تبادلہ کر دیا گیا۔ رحیم یارخان میں گندم کی قیمت میں مزید اضافہ، آٹے کے نرخ بھی بڑھ گئے۔ شہر میں گندم 95 روپے جبکہ آٹے کے نرخ 110 روپے فی کلو تک پہنچ گئے۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں کے گھر کا بجٹ مزید متاثر ہو گیا۔ رحیم یارخان میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، متوسط اور غریب طبقے کے گھر کا بجٹ شدید متاثر ہو گیا۔ گندم 90 روپے سے بڑھ کر 95 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے جبکہ آٹا 10 روپے مہنگا ہو کر 110 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کے اشیاء کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافے زندگی گزارنا مشکل بنا رہے ہیں۔ تنخواہیں وہی ہیں مگر اخراجات کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے دعووں پر پورا نہیں اتر سکی۔ جلد مؤثر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجوہات میں گندم کی محدود دستیابی، ٹرانسپورٹ کے بڑھتے اخراجات اور ذخیرہ اندوزی شامل ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر قیمتوں میں استحکام کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یارخان۔ سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ مہنگائی کا راج برقرار، سرکاری نرخوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا، عوام پریشان۔ مارکیٹ میں ٹماٹر 210، بھنڈی 200، ادرک 600 روپے فی کلو دستیاب۔ پھلوں کی قیمتیں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی آسمان پر، سبزی اور پھلوں کی مہنگے داموں فروخت جاری۔ ناجائز منافع خور مافیا نے سرکاری نرخوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ سرکاری نرخوں میں ہری مرچ 90، ٹماٹر 150 اور پیاز 80 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ہری مرچ 130، ٹماٹر 210 اور پیاز 100 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں شملہ مرچ 140، کریلے 130 اور بھنڈی 150 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں شملہ مرچ 170، کریلے 180 اور بھنڈی 200 روپے فی کلو دستیاب۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ساگ 70، لہسن 275 اور ادرک 540 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ساگ 110، لہسن 400 اور ادرک 600 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری نرخ نامے میں انگور سندرخانی 370، سیب 210 اور انار 260 روپے فی کلو مقرر۔ انگور سندرخانی 600، سیب 200 سے 400 اور انار 370 روپے فی کلو فروخت۔ پپیتا 500، جاپانی پھل 230 اور چیکو 450 روپے فی کلو دستیاب۔ سنگاڑا 200 روپے فی کلو جبکہ کیلے 100 سے 160 روپے فی درجن ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ ناظرین، کوٹھدو میں بلڈنگ مٹیریل مہنگا، شہریوں کے لیے مکان بنانا خواب بن کر رہ گیا۔ 10 لاکھ روپے تخمینہ والا گھر 25 لاکھ میں تعمیر ہونے لگا۔ کوٹھدو میں بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے عوام کے لیے گھر بنانا بھی ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ سیمنٹ، بجری، اینٹ کے لیے روز بڑھتے نرخوں نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی۔ انتظامیہ گورنمنٹ کے جاری کردہ ریٹ پر اینٹیں مہیا کرنے میں ناکام۔ 10,000 سے ملنے والی اینٹیں 13,000 روپے تک پہنچ گئیں۔ سریا 220 سے 242 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ رہی سہی کسر سیمنٹ نے پوری کر دی جو 1370 سے 1420 روپے فی بوری تک پہنچ گیا ہے۔ مٹیریل ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ جب میں نے یہ گھر تعمیر کرانا شروع کرایا تو اس وقت میں نے اینٹ لی تھی 10,500 روپے کا 1000۔
और इसको मुश्किल से 20-25 दिन गुजरे हैं और अब जो है ना 13,000 रुपये का अब है। इस हवाले से हुकूमत वक्त को जो है ना वो देखना चाहिए कि जो रेट है मटेरियल का उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि घर का 10 लाख रुपए तखमीना लगवाया था जो अब 25 लाख रुपए में तैयार हो रहा है। ये तो वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया कि उन्होंने अपना घर बनाने के काबिल बनाया। मकामी सतह पर कमेटी बनाई जाए जो मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटदू। जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन तक सर्वे टीम्स तो ना पहुंचे, मुश्किलात बढ़ाने के लिए दोबारा सतलुज का पानी आ गया। नया सैलाबी रैल आने से मुतासरीन की बाकी मांदा इमलाक भी मुतासिर होने लगी हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन तक सर्वे टीमें तो ना पहुंची, लेकिन मुश्किलात बढ़ाने के लिए दोबारा सतलुज का पानी आ गया। नवाही इलाका सरवानी शाह, शुजातपुर, दुराबपुर, लंगर, मुहाना, संदीला और खान बेला समेत दर्जनों मौज़ाआत में सैलाबी पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी, जिससे मुतासरीन के बाकी मानदा इमलाक भी मुतासर होने लगी हैं। जिद्दा जड़ तीगन तो सर्वे दी इंतजार से रस्ते मस्ते बड़े प्यान बड़ी मेहरबानी दूजा रेला वाला आगे 2 फुट को उत्ते उत्ते चलदा पे मेहरबानी नाल कोई होवे तावन तक होवे हुकूमत के जरिए तो करे चा। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि एक हफ्ते से रास्ते बहाल हो चुके थे और सर्वे टीमों के मुंतजिर थे, लेकिन पानी की दोबारा आमद ने मायूस कर दिया, जिससे उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं और बहाली का मंसूबा भी ताखीर का शिकार होगा। भाईजान बहु लोग इतना जना दे घर ढह गए, टीयर गाडर बिल्कुल सफा दियन, जानवर लोड़ गए ना गुजर है उन्होंने हक मिलिया वंजे हुकूमत की मेहरबानियों से वज़ीर आला मरियम नवाज दी। सैलाब मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि सैलाबी पानी को रोकने के लिए हिफाजती बंद जल्द तामीर किए जाएं और उनकी बहाली के लिए जारी सर्वे को भी तेज किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कुछ कम हो सके। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर, पीरवाला। वजीर रेलवे का नोटिस भी काम न आया। रेलवे इंतजामिया ट्रेन का निजाम बेहतर करने में नाकाम। पुराने इंजन और ट्रैक की मेंटेनेंस पर वक्त न होने से ट्रेन का पहिया सुस्त रवि का शिकार। ट्रेन पर सफर करने वालों की मुश्किलात कम न हो सकी। वफाकी वजीर रेलवे का नोटिस भी बेअसर। रेलवे अफसरान मुसाफिर ट्रेनों को बर वक्त चलाने में नाकाम। मुसाफिरों की मुश्किलात कम न हो सकी। पुराने इंजन और ट्रैक की मेंटेनेंस बर वक्त न होने से ट्रेनें मुसलसल लेट। अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनों का पहिया सुस्त रवि का शिकार। ट्रेनों की ताखीर से मुसाफिर इंतजार की अजियत में मुब्तला रहे। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 3 घंटे, कराची से मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस 5 घंटे, कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मेल 1 घंटा, लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस आधा घंटा, कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे लेट हुई। भाई हम तो 10 साल से आ रहे जा रहे हैं, यहाँ तो हर यानी कि रोज का मसला ही होता है। जब जाओ ट्रेनें 2 घंटे लेट हैं, 3 घंटे लेट हैं, 4 घंटे लेट हैं। अगर यहाँ टाइम से आती है तो कराची लेट पहुँचाती है। ये तो हर बार का मसला है, आज की थोड़ी पहली बात है। हर बार का मसला, इतनी परेशानी होती है। 7 बच्चे होते हैं, खाना भी खराब हो जाता है ट्रेनों में, फिर चीज़ें भी नहीं मिलती, कभी दूध नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पर स्टेशन पे चीज़ें इतनी महंगी होती हैं। मुसाफिरों ने रेलवे हुकाम से ट्रेनों के निजाम में बेहतरी लाने की अपील कर दी। कैमरामैन डी नवाज के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान में सलाहुद्दीन डोगर पार्क का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से गैर फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने के बाद शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। इलाका मकीन दूर दराज से पानी भर कर लाने पर मजबूर। साफ पानी की अदम फराहमी से इलाका मकीन अजियत का शिकार है। मुल्तान के कई इलाकों में आवाम पीने के साफ पानी से महरूम। शहर में तकरीबन 300 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब हैं, जिनमें 121 निजी सेक्टर के ताउन से लगाए गए हैं, जिनका अब कोई भी वारिस बनने को तैयार नहीं। निजी सेक्टर के ताउन से नस्ब मुतअद्दिद फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल हैं। सलाहुद्दीन डोगर पार्क का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी 2 साल से बंद है, जिसकी वजह से इलाका मकीन साफ पानी से महरूम है। बहुत मुश्किल करने पड़ते हैं, हमें दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। पूरी मार्केट वाले हैं सारे इतनी दूर जाके पानी भरते हैं। अब इतना माशाल्लाह से पैसा लगा के 2 साल हो गए बना के रखा हुआ, इसे चालू ही नहीं कर रहे। ये देख लें, आपके सामने मिट्टी है, सारा कुछ है, पर हमें दूर जाके पानी भरना पड़ता है। इलाका मकीन कहते हैं हुकूमत ने लाखों रुपए लगाकर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया, लेकिन अब पूरी मार्केट और मोहल्ला दूर दराज से पानी भरने पर मजबूर हैं। तकरीबन इसको 2 साल हो गए हैं। 2 साल से ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। लोग भी एक तो ये पूरी मार्केट तंग होती है और बाकी जो घर वाले हैं वो मतलब कि ये जो साथ मोहल्ला है वो भी तंग होते हैं कि साफ पानी भरने के लिए उनको दूर जाना पड़ता है और हमें भी दूर जाना पड़ता है। सुबह लड़कों ने कूलर भरना होता है, पानी भरना होता है साफ पीने के लिए, वो दूर जाते हैं। ठीक है, हमारी यही
यही अपील है कि इसको स्टार्ट किया जाए। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द अज जल्द फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक रोही, मुल्तान। भक्कर में मॉडल सिटी सीवरेज मंसूबा 7 साल बाद भी नामुकम्मल। अरबों रुपए की लागत से शुरू सीवरेज मंसूबा मुकम्मल न होने के बायस गंदा पानी गली मोहल्लों में दाखिल हो गया। पुल शेख राव पर गंदा पानी जमा होने से ज़ेरे जमीन पानी भी आलूदा हो गया। भक्कर में म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत या मुबैना नाअहली। अरबों रुपए की लागत से शुरू सिटी सीवरेज मंसूबा 7 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। सीवरेज मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से गंदा पानी गली मोहल्लों में दाखिल होने लगा। ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बीमारी का सबब बन रही हैं। यहाँ पर मलेरिया और डेंगू जैसे मर्ज फैल रहे हैं, हेपेटाइटिस फैल रहा है और तकरीबन 1 अरब से जो जायद हम मंसूबा था सिटी सीवरेज का, वो अभी तक ताहाल 4 से 5 साल गुजर गए हैं, वो मुकम्मल होने में नहीं आ रहा। सीवरेज मंसूबा मुकम्मल न होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। पुल शेख राव पर गंदा पानी जमा होने से ज़ेरे जमीन पानी भी आलूदा हो गया, जिसकी वजह से इलाके में बीमारियां फैलने लगी हैं। हम तो ये कहते हैं जी कि हमारे तो नल के मोटरों को पानी भी पीने का नहीं रहा है। बाहर से पानी लाते हैं और पीते हैं, सालन पकाते हैं, रोटी बच्चे मच्छर और आलूदगी की वजह से बहुत परेशान हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर सीवरेज मंसूबा मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ असलम बलोच, रोही, भक्कर। शहर ओलिया के तारीखी आम खास बाग में शाम होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया। आम खास बाग तारीखी और सकाफती खूबसूरती के बाद शहरियों की तवज्जो का मरकज। शकील सुल्तान इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी शकील। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान के आम खास बाग में मौजूद हूं और यहाँ शाम होते ही ज़िंदगी एक नई ताजगी के साथ लौट आती है। यही वो लम्हा होता है जब शहरी दिन भर की मसरूफियत के बाद इस पार्क का रुख करते हैं अपने बच्चों के हमरा, दोस्तों के हमरा, फैमिलीज़ के हमरा। यहाँ ताजगी लेते हैं। कोई वॉक कर रहा है, कोई चहलकदमी कर रहा है, कोई बच्चों के हमरा वक्त गुजार रहा है, तो कोई एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ हमें ज़्यादातर वो लोग नज़र आ रहे हैं जो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना चाहते हैं या फिर अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। यहाँ पार्क में हम देख रहे हैं कि शाम होते ही शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो पार्क में पहुँचने लगी थी और इस वक्त लोग जो है वो मुख्तलिफ सरगर्मी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, कुछ शहरी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि उनको इस पार्क से कितना लगाव है, क्योंकि ये एक तारीखी पार्क भी है। इसकी बनावट और इसकी तारीख बड़ी दिलचस्प है, तो शहरी न सिर्फ तफरी करते हैं बल्कि पार्क की इस तारीख से और बनावट से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इनसे बात करते हैं। हमें बताएं, इस पार्क में कितने टाइम से आप आ रहे हैं और क्या रूटीन होती है शाम में आपकी? सर हम जो है ना, मुझे 3 माह हो गए हैं गेम कराते हुए। मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, ब्लैक बेल्ट हूँ ताइक्वांडो से, और यहाँ पर अच्छा माहौल है। लोग जो है ना आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, सैर के लिए आते हैं। जिमनास्टिक का भी क्लब है, हमारे ताइक्वांडो के भी क्लब हैं, बच्चे हैं वो सीख रहे हैं। अच्छा माहौल है और यहाँ का जो अमला है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने ताइक्वांडो की बात की, हमने यहाँ पे देखा है कुछ लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शहरियों की एक बड़ी तादाद वो कराटे भी सीख रही होती है। तो कितने लोग इस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं रोज़ाना 1 से 2 या कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो जिसको शौक़ होता है वो आता है, यहाँ पर गेम करता है। आप लोग आएँ, जिस तरह का आजकल माहौल है, वेब वगैरह और ये नशा वगैरह चला है, हमारी नौजवान नस्ल उस तरफ जा रही है, अंधे कुएं में जा रही है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और स्पोर्ट्स में किसी भी हिस्सा लें। मैं ये नहीं कहता आप ताइक्वांडो करें, कोई भी स्पोर्ट्स आप जो है ना ज्वाइन करें, ताकि आप इस नशे से और इस पार्क न सिर्फ तफरी बल्कि यहाँ पे आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। बच्चे मौजूद हैं। बेटा, पार्क में क्या करने आए हो इस टाइम? मैं भाई के साथ ताइक्वांडो करने आता हूँ। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में आपको कराटों का शौक लग गया? बस। क्यों, कैसे शौक लगा? देख के। अच्छा, देख के। बेटा, आप रोजाना पार्क में आते हो यहाँ? जी। अच्छा, पार्क में क्या क्या एक्टिविटीज करते हो शाम में? ताइक्वांडो, एक्सरसाइज, रनिंग। अच्छा, ब्लैक बेल्ट बनने का बहुत शौक है इसलिए। अच्छा, यहाँ कौन सिखाता है आपको ताइक्वांडो? सर नासिर। ठीक है, और शहरी भी मौजूद हैं। आप बताएं, बच्चे मेरे ख्याल में आपके साथ ही आए हुए हैं। यहाँ इस पार्क में आकर क्या क्या एक्टिविटीज़ आप समझते हैं जो शहरी कर रहे हैं और कितना अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ये पार्क दूसरों से ज़्यादा हमें सरसब्ज और दरख्तों से घिरा हुआ नजर आता है? सर ये माहौल बहुत अच्छा है इनका, और साथ से जब बाहरों सीखने के लिए ख्वाहिश है ब्लैक बेल्ट बनूं। अच्छा, और मेहनत कर रहा हूँ, अगर अल्लाह रंग लगाए। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो इस टाइम मोबाइल पे या कहीं टीवी पे या दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप यहाँ पार्क में बच्चों के हमरा हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और इधर दूसरी जानब आपको लिए चलते हैं।
यहाँ पे जहाँ बच्चे और ये लोग आते हैं, वहीं पे बुजुर्ग भी यहाँ पे। अंकल, इस पार्क के हवाले से क्या कहेंगे? ये पार्क माशाल्लाह एक शहर के लिए बड़ी नेमत है, क्योंकि ये गुंजानाबाद इलाके में है और माशाल्लाह सारे लोगों को ये जो है ना फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, ये नौजवान आप देख सकते हैं इस टाइम कराटों का मुजाहिरा कर रहा है। इस नौजवान से भी बात करेंगे, फिर आपकी तरफ वापस भी आते हैं। बड़े कराटे चल रहे हैं, रोजाना पार्क में यही रूटीन होती है आपकी? जी सर, रोज़ाना मेरी यही रूटीन होती है। बेसिकली मैं गांव से हूं, तो यहाँ शहर की लाइफ आपको पता है, शोर शराबा गाड़ियों का, तो ये बहुत होता है, डिप्रेशन होता है काफ़ी जो है ना। डिप्रेशन का बड़ा बेहतरीन इलाज है। ऐसे पार्क्स का शाम को रुख करें, यहाँ पे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, और पार्क में चहलकदमी करने से, वॉक करने से जहाँ सेहत बेहतर होती है, वहीं मिजाज में भी ताजगी आती है। और आम खास बाग में भी इस वक्त नौजवान, बच्चे, बूढ़े इस चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं और ख़ुद को ताज़ा दम कर रहे हैं। जी, आम खास बाग से शकील सुल्तान, तफसील आगाह करने का बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट बेंच में मुयस्सर फरीद इंटरप्राइजेस की निश्तर हस्पताल इंतजामिया के खिलाफ रिट दरख्वास्त पर समाज जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने डायरेक्टर फाइनेंस निश्तर हस्पताल को अदायगी की हिदायत कर दी। अदालत का इदारे के लॉ ऑफिसर और AAG इकबाल निसार सरोया को वादे के मुताबिक अदायगी का हुक्म। रोही बना पिपला के मौजा ढिंगाना के मकीनों की आवाज। ढिंगाना में दरियाई कटाव से होने वाले नुकसानात पर इलाका मकीनों का एहतजाज। गुज़श्ता रोज रोही पर खबर नशर होने पर इंतजामिया और महकमा इरीगेशन मुतहरिक हो गए। साबिक MPA मलिक फेरोज जोया भी ढिंगाना के अवाम की आवाज पर मैदान में आ गए। ढिंगाना में दरियाई कटाव की रोकथाम के लिए 92 मिलियन के फंड जारी। मलिक फेरोज जोया AC पिपला और महकमा इरीगेशन के अमला के हमरा ढिंगाना पहुंच गए। मलिक फेरोज जोया का कहना है कि दरियाई कटाव को रोकने के लिए ढिंगाना में बंद की तामीर का काम कल से शुरू होगा। मंसूबे से अवाम को दरियाई कटाव से निजात दिलाने में संगे मिल साबित होगा। इलाका मकीनों ने मलिक फेरोज जोया, इंतजामिया और रोही TV का शुक्रिया अदा किया।